Come on, miscellaneous of chapter 1. Is it? Open the textbook and the study material, all the worksheet. We have discussed in the chapter relation, equivalence relation, functions, bijective functions, is it? Compositions of function, and inverse existence of a function, existence of inverse of a function. Is it here? There are the 4 concepts we have discussed in that. Now look that miscellaneous of that we'll discuss here, that how to discuss here the miscellaneous. Miscellaneous are why to be discussed here miscellaneous in the detailed way, because from miscellaneous sections many questions even from each chapters, not only this chapter, chahe second ho, chahe wo third ho, fourth, fifth, any chapter is that. Right now the questions included in the miscellaneous exercise are according to examination points of view. Examination means entrance examination, चाहे वो JEE हो, चाहे वो CUT हो, चाहे वो any engineering examination हो. Is it here? If a student is capable in solving all the questions of miscellaneous without abstractions, it means he just got clear all the concepts in that chapter here. Is it here? So however, you have to assess yourself by solving the miscellaneous. So we'll see that here. Yesterday I have told you this question here. The question number 1, you will see that here. What the question 1 says in miscellaneous: show that function f, it is domain here. This show that function f, its domain, or this is from here to here is a range. So that function from this R to that, is it here? From 11th class, this can you represented here? Do you remember the interval form of set? Is it here? आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. This is actually just see the picture कि actually है क्या concept here. It's from here to 0, or here it is what? Plus of 1, and further it is what? Minus of 1. So you will see that here. It is this here. These all value will be taken as, ये सारी जो values होंगी वो क्या होंगी? Tell please. These all the values will be codomain. Yes, codomain. They will be right now. Exactly. So is there, look that here, the minus 1 greater than minus 1 and less than 1 means minus 1 from the left hand side and the positive 1 from the right hand side are not to be included. अगर याद हो आपको तो ऐसा कुछ represent करते थे आप, कैसा? Here it is this as a dark. Is it here? Let is this is that. So this is means minus 1 is included. But if you are representing as a whole, rare bullet कह सकते हैं आप इसको, या फिर rare sphere बनाएंगे आप small, right? So it means this plus 1 is not included. Is it? So here if you will represent this, so minus 1 is not included. If here representing this, then plus 1 is not including right now. Or this is the graphical representation of the interval of the points of domain or range. So how do we represent? Parenthesis. It's what here? Minus of 1, or here it is plus of 1. Clear or not? So these things just will work behind the scene of solving the question. ये mind में आपको रखना है, and then have to go with the solutions. अच्छे से देखिए, well clear हो गए? This is the graphical representation, and this is the interval form. Set form भी कहते हैं. Real number का set ऐसे ही represent करते हैं. आप बोलेंगे set को तो ऐसे represent करते हैं. When you are making the brace, जब आप ये brace बनाते हैं, मतलब जो element आ रहा है उनको represent करते हैं. इन दोनों में क्या फर्क है? What is the difference between these two? We are talking about only minus 1 and plus 1, or here we are talking about the value all those between. So this is not the real representation. The real set representation is this. Hope you understood. So this will work behind the scene here. Got it here? So what the question says here, that just come on here. So what relationship is there? देखिए please. Here it is a function from questionnaire 1, since, is it here? Function from R2, function from R2, where? Those value of x, R2, those value of x, where? Tell please. X, where x is what? Real, x तो real है, तो क्या सारे real और real? No. जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एफ एक्स अगर, तो यहाँ एक मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग मिस्टेक हियर. व्हाट? कि
if they are giving this क्या r से x, or here it is function, or function is given by what here, f of x is equal to x and 1, it is this here. तो ये थोड़ा कंफ्यूज है कि यहाँ we are using the word x for that here, कि हम यहाँ x यूज कर रहे हैं, तो that x as a point of domain is working here that. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को यहाँ कैसा बोलना है, ये सारी वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, fx होनी चाहिए. सो आई थिंक देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ होना चाहिए fx, द वैल्यू हैज टू बी fx हियर, ठीक है. बट सेक ऑफ कन्वीनियंस कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेन, ये डोमेन पॉइंट्स नहीं है, दीज आर नॉट डोमेन पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कोडोमेन, ये पॉइंट्स ऑफ कोडोमेन है या फिर रेंज के पॉइंट्स हैं. इज इट हियर, आ गया समझ में? Is it? Now come on please that here, where x is what, here you will write x is greater than -1 but less than plus of 1 and close that. So this is the range, set of range, is it or not? Our function is given by, here is given by, is given as this is given as fx is equal to x divided by 1 plus mod of x. Is it here? Now start करें अब यहाँ पर, तो you will see that here. अब what about the r? r क्या हो सकता है? तो obviously r can be here this real number. So we'll see that here. ये आपके background में रन करेगा. A real number is what? There is a number line. Here it's 0. From the left side are what here? Negative. Or to the right side is what here? Positive. So you can see that here. This is x less than 0. Here x is equal to 0. Is it? And here this side x is greater than 0. So these three cases, but you will not represent. I am explaining here. मैं यहाँ explain कर रहा हूँ. So that's I am writing them. But in an examination, you will not have the time to explain that here. In background, you will use this concept here. ठीक है? So this is not to be written as solution. Here you will write for x is less than 0. X is less than left to the 0 number line में. Is it here? Because it's all for that here. क्योंकि ये function है. This is function. So obviously all x is what? All x is carrying an image. All x is having image. सभी की image है. Is it? So what next will be that? So here you will write for less than 0. So f of x you will write here. F of x, or also you can be written here this. यहाँ आप ऐसा solve कर सकते हैं. At the same time, yesterday I told you this. For x is what? X is less than 0. Here you will write x is equal to 0. And here you will write x is greater than 0. So what about for x is less than 0? So x is less than 0, here you will write negative of x and 1, is it not, plus negative of x here you will use. Is it here? So just talking about the mod, यहाँ mod के बारे में बात कर रहे हैं, तो negative of x will be taken as a positive. Is it here? Now next is, here you will put 0, obviously it will 0 come, right? Here it's positive of x and 1 plus positive of x. So there are the three cases of the function. ये अपने function को explore कर लिया, resolve कर लिया function को for all the domain points, सारे domain point के लिए अपने resolve कर लिया. अब तीनों केस को आप अलग अलग simplify करेंगे. तो three case will discuss here that here for 1 1 और ontoness. तो इसकी difficulty यही है. अगर एक एक करके अलग अलग लिखते तो obviously lengthy solution will be that here. तो करें start here for. So we'll discuss here 1 1. 1 1 that is what here? Ontoness. Sorry. Injectivity. So can injectivity start here? So you will suppose what is the technique of proving injectivity? Let f of x1, what is that here? Is equal to what? F of x2. किसके लिए? For all x1 and x2. Here it is this here. For x is less than 0 के लिए. Is it here? So what you will write for that here? So here you will write minus of x1 divided 1 plus what? x1 is equal to. What will here? Minus of x2 divided by 1 plus x of 2. Well clear or not? And you will simplify this expression here. इसे simplify करेंगे आप. Is it clear or not? Well understood you? Start करिए solution. So here we will just go minus of x1 plus minus of, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं. हाँ, you are right saying that here. Minus minus from either side can be cancelled. So here next will be what here? X of 1 of x1 is equal to x of 2 divided 1 of x2. अब क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से एक at the same time also you can do that here. तो इसका solution क्या आएगा? Obviously x of 1 plus x1 x2 is equal to what next is x of 2 and x1 and x2. The product will come here that.
After that, as a multiplication, you will simplify that here. This values cancels here from either side as they are equal. So here you will just have x1 is equal to x2. तो वो अचीव कर लिया, वही टेक्निक है आपकी वन वननेस प्रूव करने की. यू जस्ट टेक द सेम इमेज, आप इमेज को इक्वल लेते हैं, यहाँ पर किसको इक्वल लेते हैं, इमेज को, और लास्ट में प्रूव कर देते हैं कि द डोमेन इज सेम फॉर द सेम इमेज. मतलब अगर इमेज को इक्वल कर दिया आपने तो डोमेन भी इक्वल हो गया, मतलब एक डोमेन की एक ही इमेज. दिस इज द वन वननेस. इज इट और नॉट? अब सिमिलरली इसी के आगे आप करेंगे सिमिलरली. व्हाट सिमिलरली यू विल डू दैट हियर. किसके लिए प्रूव करेंगे? फॉर एफ ऑफ, या फिर यहां लिख दीजिए फॉर व्हाट, फॉर ऑल एक्स क्या ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0. तो करें ग्रेटर देन 0 के लिए. सो व्हाट विल बी इट? ऑब्वियसली ऐसे एक्सप्रेशन आएगा. सो व्हाट यू विल राइट हियर, x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1 ऑफ व्हाट, x2. तो ऑब्वियसली स्टेप 2 वापस आ गया. तो इम्प्लीकेशन डायरेक्टली कैन बी रिटन हियर. डायरेक्टली आप इसका इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं. व्हाट द इम्प्लीकेशन हियर विल राइट, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा. इज इट हियर x1 प्लस व्हाट इज दैट हियर, x1 x2. तो आई थिंक व्हाट इज टू बी रिटन हियर दैट, तो क्या मुझे इसको रिपीट करना चाहिए? नो, सिमिलरली वी आर राइटिंग दिस हियर. सो हियर यू विल राइट x1 इज इक्वल टू x2. तो फॉर द राइट हैंड साइड, मतलब 0 से इस तरफ वाले के लिए भी ऐसा हुआ और इस तरफ वाले के लिए, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी वैसे ही होगा. इज इट और नॉट? सो व्हाट यू विल राइट फॉर दैट हियर, तो हियर यू विल राइट, क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे आप, सिंस f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies that what, x of 1 is equal to x of 2. और ये बात सभी x के लिए सही है, सभी रियल के लिए सही है. इज इट हियर? ठीक है. therefore what is that here, here you will write f is what, 1 1. f is what, 1 1. that is called what, injective. f is injective. hope you understood here that f is 1 1, that is injective. कि f injective है. you got it clearly? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? now proceed the next. now we are to discuss here the ontoness. तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग ontoness to the side of that. इसके बाजू में हम डिस्कस कर रहे हैं ontoness. is it here? look, ontoness. second is onto. onto means what? surjective. onto means surjective. so what do onto here? मैंने कल भी कहा था onto प्रूव करना डिफिकल्ट क्यों होता है. we just be focused over the कोडोमेन. हमें ये ढूंढना होता है बस कि कोडोमेन में ऐसा कोई बात, अब और क्लियरली मैं एक्सप्लेन करता हूं. जैसे हमारा आपका फंक्शन क्या है, कि सिंस योर फंक्शन इज व्हाट, f ऑफ x, क्या है बताइए प्लीज, फंक्शन क्या है आपका, x 1 प्लस, हाँ ये आपका फंक्शन. तो हम दो केस के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर लेस देन, इज इट हियर? आगे से तो ऑब्वियसली हियर यू विल सपोज फॉर ऑल x, क्या, फॉर ऑल x लेस देन 0. तो ये जो वैल्यू है इसके बारे में देखना है आपको. इज इट हियर? तो वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट, लेट यू विल सपोज y इज इक्वल टू x नेगेटिव ऑफ x, ये विल टेक, और हियर इट विल बी 1 प्लस x. इज इट नॉट? now proceed it here, y plus y of x is equal to minus of x. clear? and here we'll just write it. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, y is equal to, या फिर इसे यहां कर दीजिए प्लीज, is to be transferred here that minus of x, is it, minus of x minus of yx. so here it is what, minus minus common. clear? और what next will be this, आप ऐसा भी कह सकते हैं x भी कॉमन है. so here it x 1 plus y is equal to y. so this expression can be written y divided by what, 1 plus y, और it's negative of y. ये x हो गया. clear? ये एक्सप्रेशन है, किस फॉर्मेट में है एक्सप्रेशन, प्लीज टेल मी गाइस. हाँ ये वही फॉर्मेट है. अब इसमें ये डिस्कस करना, ध्यान समझिएगा प्लीज प्लीज. अब ये सोचिए कि सिंस आपने पहले भी डिस्कस किया है कि y बिलोंग करता है ओपन ऑफ -1 से +, ऐसा ही ना कॉन्सेप्ट. मतलब ये कि y की वैल्यू ये -1 से शुरू होकर के ये +1 के बीच में है. ये गोला क्यों लगाया मैंने ऐसा, रेयर, रेयर बुलेट का मतलब होता है कि रेयर बुलेट का मतलब होता है ये 1 से, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है. तो 1 के क्लोजर जो है जैसे 0 नेगेटिव 0.999999 वो शामिल रहेगा, लेकिन 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड. इज इट और नॉट? बढ़े आगे.
सो व्हाट इज टू गो, देखिए आगे क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू दैट ईयर, इज इट। तो अब मुझे बताइए यहाँ अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे सपोज दैट ईयर, तो ये कब डिफाइन नहीं होगा बताइए प्लीज, जब यहां पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हियर यू विल राइट फॉर, क्या लिखेंगे, y प्लस वाई, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसी के लिए डिफाइन नहीं होगा, इसी के लिए x की वैल्यू कैसी आएगी, इमेजिनरी विल कम, नॉट डिफाइनेबल। तो वो क्लियरली इट्स सेइंग दैट हियर, तो व्हाट यू विल स्पीक हियर, y इज इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे आप x इज नॉट डिफाइंड ना, तो हियर y प्लस वाई, यहां पर दो केसेस होंगे यहाँ पर, इज इट हियर, क्या बताएं प्लीज, ये जो 1 प्लस वाई की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इज इट हियर, बोलो समझ गया कि नहीं। तो 1 प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए y को क्या नहीं होना चाहिए प्लीज, चल -1 नहीं होना चाहिए y को। तो क्या वाकई -1 है, नहीं है सर वो -1, इज इट नॉट। तो व्हाट यू विल स्पीक दैट हियर, हाँ, तो आप क्या लिखेंगे, -1 नहीं है, इज इट हियर, -1 नहीं मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मतलब ये होगा कि फॉर ऑल दोस राइट टू द -1, जो सभी -1 के इस तरफ वाले हैं 0 तक, ये सर क्या इन सब के लिए डिफाइन होगा, x की वैल्यू आएगी रियल, यस सर इट विल कम हियर दैट हियर। तो व्हाट यू विल राइट हियर, तो क्या लिखेंगे आप यहां लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 to 0, for all y belongs to -1 to 0, there exists क्या, pre-image, there exists pre-image, ठीक है, in what, in R, therefore what, f is, क्या बोलेंगे इसको, है ना, आगे समझ में। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, विल नॉट कंक्लूडेड दैट, अभी तो हमने किसके लिए प्रूव किया, 0 से लेफ्ट तरफ, अब किसके लिए स्टार्ट करेंगे आप, हाँ आप समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट हियर फॉर दैट हियर, अब फिर आगे स्टार्ट करेंगे आप, व्हाट यू विल राइट फॉर, टू राइट हियर फॉर x इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाट हियर fx, या इसी के आगे आप इंप्लाइज कर लीजिए, ठीक है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 f of x is equal to what, next is positive x, or here it will be positive of that. So you will suppose this as a y, this is y, x and 1 plus x, hope you understood. Proceed it here, y plus y of x is equal to x, so what will come here, that y is equal to x minus yx, so what is common here, x 1 minus y, here it is y, और आगे प्रोसीड करिए प्लीज। What next will you, I am solving in the great, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन इसको, इज इट हियर 1 minus y is equal to x, आगे वैसे। अब बताइए x इज रियल, तो x यहां पर कब डिफाइन नहीं होगा, एग्जैक्टली, तो यू विल राइट हियर फॉर व्हाट, हियर यू विल राइट 1 minus y is not equal to 0, 0 नहीं होगा, उसके लिए डिफाइन होगा, इज इट हियर। तो हियर यू विल राइट x is defined, x is डिफाइन, इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, x इज डिफाइन का मतलब क्या होता है कि x एक रियल नंबर है अगर वो 0 ना हो तो, और अगर वो 0 होगा तो उस समय y क्या होगा, प्लीज टेल बताएं, 1 इज नॉट इक्वल टू y, इसका क्या मतलब कि y को 1 नहीं होना चाहिए, y को, और ऑब्वियसली y 1 नहीं है। अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते, क्या चेंज कर देते क्वेश्चन में, कि ऑल fx, ये ऑल fx होते ना, जहां पर fx क्या है, fx लाइज बिटवीन क्या, -1, तो ये ऐसा लिख देते आप, ये क्लोज इंटरवल और +1, तो इससे क्या हो जाता है बताएं प्लीज, ऑन टू फंक्शन नहीं होता, लेकिन अभी ये ऑन टू फंक्शन है, बोलो क्लियर नॉट। सो व्हाट यू विल राइट हियर, तो हियर यू विल राइट सिंस कि y इज व्हाट, या y बिलोंग्स टू किसके लिए, 0 से लेकर, ये 0 होगा ना यहाँ पर, हियर इट्स 0, हियर इट्स 0, ये 0 भी इंक्लूड कर लेंगे आप यहाँ पर, हियर इट्स 0 टू इट्स व्हाट हियर ओपन ऑफ 1, तो अब ये लिखेंगे देयरफॉर, यहां आपने व्हाट यू हैव प्रूव्ड, you proved here x is what is, for x is greater than 0, here it is this y, ये प्रूव किया ना आपने, देखिए प्लीज, इट इज दिस कि y belongs to -1 to 0, there exists pre-image, तो यहां क्या लिखेंगे आप प्लीज, what you will write for that here, पता है प्लीज क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे for what, यहां से 0 से लेकर के +1, 0 से लेके +1, तो 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ,
0 के प्लस 1 वॉट देयर एग्जिस्ट क्या, तो एक्चुअली ये फॉर मतलब व्हाट, फॉर व्हाट वाई, फॉर व्हाट वाई बिलोंग्स टू दिस, हियर यू विल राइट ओके, फॉर वाई बिलोंग टू 0 to 1 देयर एग्जिस्ट a pre-image in what, a pre-image in R में pre-image है, is it here? तो इससे क्लियर हुआ what a concluder देखिए, therefore y belongs to open of -1 to +1, open of -1 to +1 क्या, there exist, बोलिए प्लीज, there exist a pre-image। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? yes. आगे समझ में ना? सबसे डिफिकल्ट क्या महसूस किया आपने? लिखने का तरीका। ये तो स्टूडेंट क्यों डिफिकल्ट महसूस करता है? क्योंकि वो एक फ्रेम करता है, जैसे बुक से उसने पढ़ लिया ऐसा लिखना है, बुक वाले ने आप अंडरस्टैंडिंग करके, व्हेन यू विल राइट द सॉल्यूशन बाय अंडरस्टैंडिंग, एक बड़ी सी थिक बुक पढ़ ली अपन ने, सेम टू सेम में छापना नहीं, समझ के करिए। सर्टेन लाइंस, सम लाइंस कुड बी एडेड बाय यू और ऑन, खुद आप ऐड कर सकते हैं। तो मतलब मेरे आंसर में कमी थी। हाँ, आंसर में कमी थी, कुछ स्टेप स्टूडेंट क्या सोचते हैं, स्टेप फॉलो करना, स्टेप, ये क्या बात हुई, स्टेप्स फॉलो, whatever is demanded you just have to describe a question before you on the board, आपको बोर्ड में डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन को। आपने एक बड़ी रिफ्रेशर बुक उठाई और उससे देख लिया फ्रेम, हाँ बस हो गया, समझ गए कि नहीं, यहाँ ये हटा के ये लिखना है, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये लिखना है। आप यू आर नॉट लर्निंग, आप लर्न थोड़ी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ्रेम मतलब एक रेडीमेड प्रोग्रामिंग देख लिया, उसमें वैल्यू फीड कर रहे हैं बस आप, इज इट? यू मस्ट नो दैट हियर। तो y belongs to there exists a pre-image, therefore what, f is क्या, onto, that's what here, surjective, so x is surjective, hope you understood here, so clearly understood the meaning of the surjectivity। let's come on please, एक बार फिर से देखिए प्लीज इसको, all along that here, here it is this, we have checked here ontoness and one-oneness, is it? अब इस सॉल्यूशन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो काफी बड़ा लग रहा है सॉल्यूशन इसको, is it? तो दिस सॉल्यूशन कुड बी इजी हियर, कुछ सॉल्यूशन इजी बना सकते हैं आप इसको, नंबर ऑफ स्टेप्स कुछ कम कर सकते हैं, इज इट? हियर मैटर डज नॉट कंटेन कि आप बड़े सॉल्यूशंस लिखे हैं आपने, यू आर गेटिंग द कंसेप्ट क्लियरली और नॉट, बढ़े आगे, इज इट? नाउ द नेक्स्ट इज, look that what the question says here. The first question, show that function f from R to R given by fx is injective, ये क्वेश्चन दिस, what the question says here, ये इंजेक्टिव आपको देना है, what क्यूबिक फंक्शन, तो शो करने का इंजेक्टिव है, तो ऑब्वियसली इंजेक्टिविटी कैसे करेंगे आप समझ गए ना, तो दिस लाइन आई विल नॉट राइट हियर, मतलब ये डोमेन, यस स्टेटमेंट में गिवन था, मतलब ईच और डिग्री पॉलिनोमियल जो रहते हैं वो इंजेक्टिव फंक्शन, ये तो डायरेक्ट थ्योरम होगी ना, जैसे आपने प्रेडिक्शन कर दी, यस सर विदाउट सॉल्विंग आई कैन प्रेडिक्ट व्हाट, सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इंजेक्टिव होते हैं, ऑड इंजेक्टिव, ऑड इंजेक्टिव का मतलब क्या है, ये पावर, इसकी पावर है पावर 3, अब हाँ एग्जैक्टली 5 7 9, आप समझ गए, दैट्स राइट यार, दे आर ऑल इंजेक्टिव, तो बड़े आ गए, इज इट? हियर अच्छा स्क्वायर क्यों नहीं है, हम चलेंगे क्यों नहीं स्क्वायर इंजेक्टिव नहीं होता, बताइए, क्योंकि सर -1 एसोसिएटेड विद +1 और +1 एसोसिएटेड विद 1, तो व्हाट टाइप ऑफ, ये हो जाता है many to 1, this is not 1, is it or not? तो do you want to know the solution by me, बन जाएगा, बाकी थ्योरी थोड़ा लिख सकते हैं, थ्योरी क्या लिखेंगे, जस्ट राइट हियर थ्योरी, हाँ ऑब्वियसली थ्योरम ना, डायरेक्टली यू कैन गिव हियर दिस प्रेडिक्शन, और थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, इज इट हियर one-oneness, बोलिए क्लियर और नॉट? तो इसमें वही सारी चीजें प्रूफ कर देंगे आप इसमें, फॉर एक्स इज लेस देन 0 के लिए बता देंगे, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा, हियर एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए बता देंगे आप, इज इट हियर? नाउ लुक, गिव अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस px, px किसका रिप्रेजेंटेशन, पावर सेट, मतलब p ऑफ x इज द पावर सेट, मतलब p इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट और x भी एक सेट है, मतलब पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, सिंगल मेंबर्स नहीं होते, पावर सेट के एलिमेंट खुद एक सेट होते हैं, इज इट? सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट, सेट ऑफ अ क्या लिखेंगे, सेट ऑफ अ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट,
इज इट? थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस बात को अपन. Like that 1 2, a set is containing 1 2. So you will make here all subset 1 1 1 it is, or what here 2 it is, or it's what here 1 2 it is, or it nothing. It's called 5 word set. इन सबका कलेक्शन इसी को पावर सेट कहते हैं. तो लुक दैट ये पावर सेट का एलिमेंट क्या है? 1. तो इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या आप, ये एक सेट है तो इट्स व्हाट हियर एलिमेंट ऑफ px. बोलो ये समझे कि नहीं? आगे सुने. तो ये जो p सेट है तो देयरफॉर ये व्हाट इज दैट हियर. तो इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है यहाँ पर वी आर राइटिंग व्हाटएवर इज दिस. तो जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं ये x p ऑफ x जिसको हम कहते हैं, मतलब किसका सबसेट लिख रहे हैं आप, समझिएगा प्लीज. इस सेट को क्या नाम दिया मैंने? a. तो ये सब क्या है? a के सबसेट है. तो इस सेट का नाम मान लीजिए क्या है? a1. इट्स नेम इज व्हाट हियर? a2. इट्स नेम इज व्हाट हियर? a3. सो कैन वी राइट दिस हियर कि a1 इज द मेंबर ऑफ p ऑफ a. ऐसा माने implies that a1 is the subset of a. ऐसा मान सकते हैं? यस सर. ठीक है, बोलो समझे कि नहीं? अरे समझ आ गया. तो डेफिनेटली इसके जो मेंबर्स होंगे वो इसी का इसमें जो इंक्लूडेड है वही होंगे. इज इट? चलिए लेट्स कम ऑन प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दैट. So which is the set of all subset of x? Define the relation R in Px as follow. For subset AB in set Px, A related to B, A related to B, if and only if. If and only if का what is the meaning of if and only if? If and only if का सिंबल ये है. If and only if. Only the condition कहते हैं, केवल एक ही कंडीशन का मतलब होता है A implies B, is it here? और B implies A. तो जब A implies B, B implies A प्रूव करते हैं तो इसी को कहते हैं if and only if. So if and only if A is the subset of B, is it here? Is R मतलब ये होगा ARB, is it here? तो ये होगा is it here? Is R an equivalence relation? क्या R जो है Px पर equivalence relation है? तो oneness और equivalence relation मतलब reflexive, symmetric and transitive. These things we have to prove here. तो अब इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट कैसे लिखेगा? हाउ विल यू राइट दिस हियर? कैसे लिखेंगे इक्विवेलेंस का? इक्विवेलेंस रिलेशन आई हैव टू प्रूव. कैसे करेंगे स्टार्ट? हाँ चल प्लीज. पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे. समझिए प्लीज, हमें क्या प्रूव करना देखिए प्लीज. R is an equivalence relation on Px. हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना है? R is an equivalence what? relation on what? on Px. इस पे प्रूव करना है. इसका मतलब यहां से आप कौन से मेंबर उठाने हैं हमें? विच मेंबर वी हैव टू? हमें उठाने हैं x1, x2 और x3. ये क्या है? सेट्स हैं जो Px के क्या है? एलिमेंट हैं. और कैपिटल X के क्या है? सबसेट्स हैं. अब क्लियर हुआ कि? अरे बोल रहे हैं इज इट? यहाँ देखिए अभी एक्स पे मैंने एग्जांपल लिया. ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो सबसेट्स ही लेंगे आप और इनमें जो मेंबर्स होंगे, इनके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो इसमें भी होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स सर इसमें भी होंगे. इज इट हियर? तो करें स्टार्ट टू राइट डाउन द सॉल्यूशन. लिखिए पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन. हाउ विल यू राइट डाउन द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? स्टार्ट राइटिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ध्यान रखिएगा इफ एंड ओनली इफ ए बी द सबसेट ऑफ बी. तो व्हाट यू विल राइट फॉर दिस? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट हैज टू राइट व्हाट? आप इसको ऐसा लिख लीजिए प्लीज. सॉल्यूशन इज इट? हाँ, start writing that please. What is it saying? Since relation R on Px, is it here? Or Px is given as ये या फिर Px. ऑब्वियसली रिलेशन की जो बात हो रही है वो Px रिलेशन है. R Px पे रिलेशन दे रहे हैं किस तरह का, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है. अपन रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन है उसकी. कैसे बताइए प्लीज? ऐसा रिलेशन है कि A बी द सबसेट ऑफ, मतलब A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B. कब बताइए? इफ एंड ओनली इफ. ये लॉजिक है. इफ एंड ओनली इफ
ए बी द सबसेट ऑफ बी। मतलब ए और बी क्या है, तो थोड़ा डिटेल कर लीजिए कि ए कॉमा बी आर व्हाट, आर बिलोंग्स टू नहीं, अब बिलोंग्स टू पी एक्स होगा, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन व्हाट यू विल राइट है, ए कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ एक्स, ऐसा भी होगा। इज इट? ये दो लाइन, दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। दिस विल रन ऑन बैकग्राउंड, राइट। सो स्टार्ट करिए रिफ्लेक्सिव। हाउ विल राइट, स्टार्ट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। सो रिफ्लेक्सिव की टेक्निक याद है कैसे प्रूव करते हैं हम, है ना? हाँ, तो इसको देखिए प्लीज। हाँ, तो क्या ए से रिलेटेड है? नहीं, अपन ऐसे देखेंगे, अपन ये देखेंगे क्या ए का ही सबसेट होता है? यस। तो व्हाट यू विल राइट फॉर दैट, तो आप यहां लिखेंगे लेट A1, ऐसा लिखेंगे ही नहीं, A1 बी द सबसेट ऑफ व्हाट, बी द सबसेट ऑफ A, A1 बी द सबसेट ऑफ A, या फिर व्हाट यू विल राइट फॉर दैट, यहां लिख लीजिए X1 बी द सबसेट ऑफ A, X1 बी द सबसेट ऑफ A। यहां X नाम दिया तो X भी ले सकते हैं आप ऐसा करके, ठीक है। क्यों बताइए, एक मेंबर है, कंसीडर कर लीजिए। तो देयरफॉर X1 कॉमा X1 बिलोंग्स टू R, क्यों बिलोंग करेगा बताइए? हाँ, यहां लिखोगे एज व्हाट यू विल राइट हियर कि X1 इज द सबसेट ऑफ X1। थियोरेटिकल आल्सो यू कैन राइट हियर कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। बोलो समझ गए कि नहीं? सो यू विल राइट हियर दिस व्हाट, देयरफॉर R इज क्या, आगे समझे? तो R इज, तो ये जो एक मिनट रुकना है, तो इसी के आगे थोड़ा सा इंप्लाइज क्या करोगे आप कि X1 इज द मेंबर ऑफ P ऑफ X, ऐसा कुछ कंसेप्ट। इज इट हियर? एक मेंबर ले लिया आपने, गॉट इट? बोलो आगे समझे। R इज what? हाँ, R is reflexive. Here you will write R is reflexive. ये reflexive. पहला part clear? Second part, what is that here? Symmetric. It's a symmetric. How will you give the symmetricity? So symmetry is what? Same way concept. Let what? X1 comma X2 right now belongs to P of X. बोलो समझे कि नहीं? X1 comma X2 belongs to P of X. Where? आप समझ गए ना तो बात को, X1 और X2 are the subset of X such that, समझिएगा, such that इस तरह से क्या लेना अपन को बताइए कि X1 what? बोले प्लीज। X1 is the subset, X1 related to X भी ऐसा कहता है वो, राइट ना, कि X1 is the subset of X2. X1 is the subset of X2. Is it here? लेकिन here is what saying कि X1 comma X2 belongs to R. ये मतलब हुआ ना, इसका ये मतलब हुआ। अब इसको उल्टा लेना है अपन को, तो इसको ऐसा सपोज कर सकते हैं अपन कि X1 और X2 belongs to R, ये आपने मान लिया। That is, ये implies that X1 is the subset of X2. Is it here? If, तो वो कहता है ना कि ए ओनली कंडीशन बोलता है, वो क्या बोलता है, वो ओनली कंडीशन। तो सिंस क्या कहता है कि ए बी द सबसेट ऑफ बी, ओनली, ये ओनली कंडीशन है, ए रिलेटेड टू बी, इसी को ओनली कंडीशन कहते हैं। इज इट हियर? तो हियर यू विल राइट कि इफ X2 बी द सबसेट ऑफ X1, इज इट हियर? देन क्यों बताइए, यहां लिखेंगे ओनली द कंडीशन। इज इट हियर? देन X2 X1 will also follow this relation, मतलब ये भी इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, what is that here? R is symmetric. क्लियर है? अगर ये लाइन ना हो, ये वाली, this line will not be only the condition, if and only if, तो ये ऐसा नहीं होगा। Is it here? Third is what? I hope third you can write here is transitive. What is the transitive here? Tell please. Here we'll suppose let 3 X1 comma X2 comma X3. There are the three subsets sets we are taking. Which are the subsets of? यहाँ लिख सकते हैं are the subset of what? X, जो X की subset है। Is it here? Here we will take a such that, किस तरह से? Such that, बोलिए पहला,
x1 x2 बिलोंग्स टू R का मतलब बोलिए प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि x1 सबसेट ऑफ x2. ओके, सेकंड बताएं प्लीज, व्हाट द नेक्स्ट इज, सेकंड है x2 x3, इज इट हियर, कॉमा बिलोंग्स टू R. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि x1 इज द सबसेट ऑफ x3, इज इट हियर. तो व्हाट नेक्स्ट इज, तो देखिए प्लीज, x1 इज द सबसेट ऑफ x2 और x2 इज द सबसेट ऑफ x3. समझना आप, जैसे हम कहते हैं कि एक सेट में 1 2 है, इज इट हियर, और एक सेट में क्या है 1 2 3 है, और ये सेट यहाँ पर है, और इस सेट में क्या होगा 1 2 3 और ये 4 हो गया. तो क्या ये भी इसका सबसेट होगा, साफ साफ दिख रहा है, इज इट हियर, वेल क्लियर नॉट, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. बोलो समझ गए कि नहीं, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं. तो हियर यू विल राइट देयरफॉर x1 इज द सबसेट ऑफ x3. ये लाइन बस यहीं पर यूज होगी एक्चुअली में, इज इट हियर. सो इंप्लाइज दैट व्हाट x3 और x1 एंड x3 बिलोंग्स टू R. मतलब ये दो आप कंसीडर करते हैं और तीसरा आप प्रूफ कर देते हैं. तो व्हाट यू विल राइट हियर, हियर R इज व्हाट, ट्रांजिटिव, R is transitive, since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation. Is it here clearly well understood? Now let's proceed here. That question number question 4, find the all onto function from. सर हाँ यस, सर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर आएगा, हाँ हाँ इज आर इक्विवेलेंट रिलेशन यस, और पीएक्स, तो आंसर नो आ रहा है. नहीं नहीं, लेकिन इफ एंड ओनली इफ कह रहा है वो, कंडीशन पढ़ो, रिलेशन कुछ और है. इफ एंड ओनली इफ, मैंने आपसे कहा ना वो लाइन हट गई, इफ एंड ओनली इफ लाइन हटाया आपने, तो ए इंप्लाई ए बी द सबसेट ऑफ बी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि बी इज द सबसेट ऑफ ए. नहीं नहीं समझे आप, देखिए प्लीज लुक दैट हियर, हम क्या कह रहे हैं यहां से, इज इट, अगर हम ये कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ, एक ही लाइन ऐड करना है, ये दो, ये इट इज दिस हियर दैट, अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, इज इट हियर, मतलब ए और बी कैसे सेट होंगे, दो इक्वल सेट होंगे, उसी के लिए ऐसा होगा ये ए और बी. तो क्या टू इक्वल सेट्स कुड बी देयर इन अ सबसेट, ध्यान से समझिए प्लीज. आप यहां क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ दैट हियर. तो इस पावर सेट में क्या ऐसे दो सेट आते हैं जो इक्वल होते हैं, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट होंगे इसमें, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, इज इट हियर. इसका मतलब ये थ्योरेटिकल कंडीशन इफ एंड ओनली इफ क्या करेगी, इस पावर सेट के लिए काम नहीं कर सकती सर, क्योंकि सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता वो. क्यों नहीं हो सकता सिमेट्रिक, क्योंकि पावर सेट कह रहे हैं आप ना, इज इट हियर. तो व्हाट यू विल टेक हियर दिस पावर सेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा b, दैट इज व्हाट हियर, कि a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है. बट हियर यू विल राइट, बट b और सबसेट ऑफ a, इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिलोंग नहीं करेगा. लेकिन वो कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, तो हाउ दिस कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन इज देयर, तो क्या लिखेंगे, फॉर अ सबसेट ऑल सबसेट ऑफ, या पावर सेट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज इट हियर. तो व्हाट यू विल राइट हियर, बट इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ, वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो आप उसको बता दीजिए, इज इट, व्हाट यू विल राइट हियर, कि फॉर अ, व्हाट इज द स्टेटमेंट यू विल राइट, फॉर अ पावर सेट, फॉर अ पावर सेट, या फॉर अ पावर सेट x1 मतलब देयर आर, व्हाट यू विल राइट, x1 x2. आप एक एग्जांपल जैसे प्रेजेंट करते हैं, हियर इट्स व्हाट हियर 1, और ये क्या हो गया, इट्स 1. तो ये 1 किसका सबसेट है बताइए, 2. ऐसा हुआ कि नहीं बताइए प्लीज. तो इट्स x1 और इट्स x2, ठीक है. तो अब अगर हम, इफ यू विल राइट a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a, इंप्लाइज दैट व्हाट विल हियर, a इज इक्वल टू b.
तो ऐसे दो सेट जो इक्वल हो किसी एक सेट के अंदर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इज इट हियर? तो क्या लिखेंगे? x1 and x2 फॉर अ पावर सेट x1 and x2, x1 subset of x2 but x2 is a subset of x1 is not possible. तो where you will write for this here? कहां लिखेंगे आप इसको? Go to back here this. Here you will write. इस लाइन में लिखेंगे आप. कहां पर? कहां गया? ट्रांजिटिव. ये if here you will write not possible. Yeah, you will write x1 x2. x1 is a subset of x2 but x2 is a subset of x1. ऐसा पॉसिबल नहीं है. Is it here? अगर ऐसा हुआ तो what will be there? क्या होगा? लेकिन वो कहता है कि x1 related to x2 implies that a subset of b. उल्टा a subset of b implies that x1 related to. तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. तो पावर सेट के लिए ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इज इट हियर? तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता. फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा. लेकिन पहला जो अपन प्रूफ देखा उसमें कंडीशन है कि इस पर कोई पावर सेट होगा, दो इक्विवेलेंसी नहीं होगी. फिर इक्विवेलेंसी का मीनिंग देखिए प्लीज. सी ऑन द क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंसी. सॉरी, meaning of equivalency, where is that? A related to B if and only if. तो ये फंक्शन है एक्चुअली. ये यहां से यहां तक लॉजिक है इसका. मतलब A related to B का मतलब ये है A comma B belongs to R implies that A be the subset of B. Is it here? उल्टा कर लीजिए आप. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ए बी रिलेटेड टू. और अगर हम ऐसा करेंगे बी ए मतलब व्हाट? मतलब उसका एक साइड है ए रिलेटेड टू बी तो ऐसा आएगा. उल्टा ले लीजिए प्लीज. ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट क्या होगा? ए बी द सबसेट ऑफ बी. ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर इन दोनों को हम रिलेशन में मानेंगे. इज इट हियर? तो ये वही कंसेप्ट है जो आप आंसर बता रहे हैं ना. उस आंसर में वो पावर सेट के लिए कह रहा है. वो पावर सेट के लिए कह रहा है. और ये क्या बात कर रहा है समझिए प्लीज. ये दो लाइन है यहां पर. ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी. इसका क्या मतलब हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट क्या? ए इज द सबसेट ऑफ बी. अगर मैं इसे जनरल डेफिनेशन का टर्म्स मानूं कि ए रिलेटेड टू बिलोंग्स टू बी तो इस हिसाब से वो सिमेट्रिक नहीं होगा. इज इट? फाइनली सिमेट्रिक लिख दीजिए. सिमेट्रिक नहीं है. क्यों बताइए? क्योंकि टू इक्वल सेट x1 x2, x1 and x2, x1 is the subset of x2 और x2 is the subset of x1. Is it? two equal set ठीक है do not exist in a power set of a set. बोलो समझ गए कि नहीं? Similarly, next is क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड अ नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम 1 to ऑनटू फंक्शन बताना है. कितने हो सकते हैं ऑनटू फंक्शंस? n फैक्टोरियल. पक्का? कैसे n फैक्टोरियल कैसे निकालते? समझ गए ना? एग्जैक्टली. हम इसकी प्रैक्टिकल. हाँ, वेट ऑन प्लीज. हियर इट इज दिस. सो यू विल राइट हियर इट इज x1, हियर इट इज x2, हियर इट इज x3 और इट्स y1 और इट्स y2 और y3 और ये हाँ y4. तो हर एक दूसरे से अटैच होगा खुद से itself. ऐसा कुछ. इज इट? ये तो क्या हो गया 1 मेनी टू 1 फंक्शन हुआ. तो ऑन टू का मतलब यहां से देखना है आपको. मतलब हर एक इमेज की प्री इमेज होना चाहिए. यस. तो इसे प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे. वेट एंड प्लीज. x1 x2 और x3 y1 और ये y2. ठीक है. तो इसकी में प्री इमेज ये, इसकी प्री इमेज ये और इसकी प्री इमेज ये. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस. राइट. तो व्हाट कुड बी दिस? ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे ये इससे एसोसिएट हो. ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो समझ गए कि नहीं? तो ये खाली रह गया. इज इट?
तो पहले तरीके कितने हुए, तो मेंबर्स कितने हैं इसमें बताइए, 2 मेंबर्स हैं, इसीलिए तो 2 मेंबर्स इनसे एसोसिएटेड हो गया कि नहीं, कितने तरीके से बताइए, जितने मेंबर है 3, ठीक है, तो व्हाट यू विल राइट दैट हियर, तो 1 into 3 हुआ कि नहीं बताएं प्लीज, अरे बोलिए प्लीज, पहला तरीका हुआ कि नहीं, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये दोनों एसोसिएटेड होंगे, किन से, कैसा तरीका हो सकता है बताइए, पहले 1 3 से एसोसिएटेड हो गया, फिर ये 2 किससे एसोसिएटेड होंगे, 3 से, क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3, और कोई तरीका बस, तो व्हाट इज कॉमन इन देम, 3 कॉमन, व्हाट लीव हियर 1 plus 2, तो व्हाट इज दैट हियर 3 into 3, तो क्या हुआ 3 to the power 2 हुआ क्या, तो इस बेस पे देखा जाए इसकी पावर क्या हुई 2 और इसकी पावर क्या हुई 3, तो इसमें अगर एलिमेंट कितने हैं m और इसमें एलिमेंट ऐसा कुछ होगा, नंबर ऑफ सबसेट, या फिर कोई दूसरा तरीका होगा, बताएं प्लीज। नहीं, पहले फॉर्मूला, फर्स्ट विल मेक द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे आप पहले, ईच मेंबर ऑफ दिस एसोसिएटेड विथ, ईच मेंबर ऑफ दिस एसोसिएटेड विथ दैट, ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू, पहले मीनिंग किस पे फोकस करना है आपको, यू हैव टू फोकस ओवर द नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू, ये नंबर ऑफ ऑन टू का मतलब क्या था, कितने तरह से ऑन टू मैपिंग दी जा सकती है, पहला तरीका क्या है मैपिंग देने का, ये क्या ये एक मैपिंग है, यस ये एक मैपिंग हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी मैपिंग हुई बताइए, इसको हटा दीजिए प्लीज, फिर दूसरी मैपिंग कौन सी होगी, x1 x2 और x3, ये हो गई, इज इट ये, और ये हो गई ये, कितनी मैपिंग होगी बताइए, ये 2 मैपिंग होगी, और तरीका क्या हो सकता है बताइए, कौन सा, नहीं हो सकता, 2 तरीके हुए, ठीक, अब 3 एलिमेंट्स में लेते हैं, तो 3 एलिमेंट्स कितने तरीके होंगे, तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट कितने तरीके से अटैच हो सकता है इनसे, ईच एलिमेंट देखिए ना, एक तरीका ये एक तरीका, तो कितने तरीके हो गए टोटल, 2 वेज आ रही है, और मेंबर्स कितने इसमें 2, इसी तरह से अगर इसमें 3 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर का बनाइए, कितने तरीके होंगे इसमें 3, इज इट ये, अब ऑब्वियसली तो ये तो 2 वेज हो गए और 3 वेज हो गए, तो क्या इनको ऐड करेंगे, तो जवाब इसका ये है, आप गो टू द क्लास 11th, आपको डिस्कस हुआ था, यहां पर हमारे पास में 2 पैंट्स हैं, 2 पैंट हैं, और यहां पर कितने 3 शर्ट्स, सही है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, तो ऑब्वियसली आप 3 शर्ट के साथ 2 पैंट कितने तरीके से पहन सकते हैं, तो 3 into कितने तरीके होंगे उसके, 2 तरीके होंगे, ऐसी होगा ना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्या देखिए प्लीज, ये तरीका है, इट इज दिस, y1 y2 और y3, x1 x2 और x3, मतलब ये हुआ इससे कनेक्टेड ऐसा और ऐसा हो सकता है, यस सर एक तरीका ये है, इसलिए फिर उसको हटा करके क्या करेंगे आप, और तरीके, मतलब जितने 3 एलिमेंट है इन तीनों से कितने तरीके से अटैच हो सकते हैं वो, 3 into 3 वेज, है ना, इसलिए तो इसका जब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, तो 2 into, फिर 3 into 2 एलिमेंट्स है तो 2 into 1, 3 एलिमेंट्स है तो 3 into 2 into 1, 4 एलिमेंट्स है क्या 4 into 3 into 2 into 1 एट अ टाइम, और बढ़ते चले, कुल मिला के क्या होगा n फैक्टोरियल, इसीलिए नींद आ रही है, पकाऊ लग रहा है ना, हाँ मुझे भी लग रहा है, इसीलिए तो कितने एलिमेंट है प्लीज टेल मी, n फैक्टोरियल या n स्क्वायर, n फैक्टोरियल, और नंबर, हाँ कैसे, मतलब एक खुद से ही बना रहा है ना वो, तो उसमें डोमेन भी वही होगा, डोमेन सेट, और रेंज सेट, सॉरी कोडोमेन सेट भी वही होगा, सर एक सेट तो फिर वो खुद से ही, मतलब जो इमेज है उसकी फिर इमेज खुद से ही होगी ना, नेक्स्ट प्लीज, A be the set of this, B be the set of this, f and g from A to B function defined as, ये fx फंक्शन है और ये what gx फंक्शन है, आर इक्वल प्रूव करना, बन जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, only 5 will be 5, 6 and 7 will be your home assignment, is it here, the 6, 7 questions you will appreciate them, this typical questions may come in examination,
बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पसेस दे आर इंपॉर्टेंट, इज इट? ये तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने डिस्कस किया एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पसेस से अलग है थोड़ा, इज इट? बट दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल दोस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इज इट? हियर सो टुमारो विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के लिए यू विल जस्ट हैव टू गो द नॉलेज व्हाट वी हैव गॉट इन द 11th क्लास. जितना आपने पढ़ा वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए विद देयर डोमेन एंड रेंज. It's easy to understand the second chapter of the 12th class when you remember about domain and range of the trigonometric function. और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आते हैं वो दिमाग में आप रखेंगे. इज इट हियर? बिकॉज अ पिक्चर स्पीक रादर देन अ वर्ड्स. अगर पिक्चर याद होगी तो पूरी तस्वीर, आप पूरा कहानी याद होगी आपको. इज इट हियर? मतलब तस्वीर बयां करती है क्या? कहानी. थैंक यू वेरी मच.